Assalamualaikum students. I'm your course instructor Miss Anika Saidzia from University of Education, Bank Road Campus, Lahore, and your subject is Advanced Painting and the course code is FINE 4134. First we will see the course outline. The first topic is Introduction, then there is Looking Back to the Past, then there is Monochromatic Tonal Painting, then importance of symbolic elements, practical assignments on compositions, then there will be preliminary sketches, then there is a topic of painting on myself, master copy in which you will use a mirror and not a photograph, introduction project on color harmony, modern concepts, social thought, self-portrait using palette knife technique. After World War II, reclined and foreshortened figure pose, color, shape and composition. Then there is topic of portrait painting. Then there is a self-portrait from mirror or trait painting. Today we are going to start our lecture number 22 and today's topic is initial sketches. So what we will discuss today about the preliminary sketches or the initial sketches, which are very important and which provide a base and foundation to any image, especially in painting. If you are going to start some project, it doesn't matter that either you are going to paint a painting or a sculpture or a relief work or a miniature or some graphic design work. In every artwork you need to make some initial sketches or preliminary sketches, so you will get an idea and more detailed understanding of your final project and its outcome. So preliminary sketches traditionally refers to a preliminary rough type of drawing that an artist might make in preparation for either a painting or a more formal drawing like a study. So इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पेंटिंग कर रहे हो या स्कल्पचर कर रहे हो या रिलीफ बनाने लगे हो, आप इवन आप एक बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट करने लगे हो, तो उसके लिए भी आपको फर्स्ट जो है एक प्रिलिमिनरी स्केच या इनिशियल स्केच चाहिए होता है. जैसे आपने पढ़ा होगा डिज़ाइनिंग का भी डेकोरेटिव डिज़ाइन होता है और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होता है. तो आप कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है आपकी पेंटिंग के लिए, आपके स्कल्पचर के लिए, जो भी आप आर्टवर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं. क्योंकि जब तक आपका स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होगा, आप जितना भी उसको डेकोरेट कर लें, जितना भी उसको ब्यूटीफाई कर लें कलर्स के थ्रू, डिज़ाइंस के थ्रू, वो फंक्शनल नहीं होगा, वो बेनिफिशियल नहीं होगा. सो it is very important to have a strong foundation of any artwork which you are going to produce or make. A sketch is less detailed than a study. A study may be a highly detailed rendition of something to be used in a large composition. So इसमें भी बहुत important है इस चीज़ को understand करना that sketch is something else and detailed study is something else. ये दोनों चीज़ें बहुत different हैं. sketch जो है आप उसको कह सकते हैं कि उसमें अगर आपकी डिटेल स्टडी है तो उसमें आपके अगर 10 पॉइंट्स कवर हो रहे हैं तो आपके स्केच में 5 पॉइंट्स कवर हो रहे होंगे ऑफ योर आर्ट वर्क. सो एक डिटेल स्टडी जो होती है उसको आप बाकायदा तौर पे अपनी पेंटिंग या अपने स्कल्पचर में एज एन एलिमेंट, एज अ पार्ट आप उसको यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं. बट स्केच जो है उसमें काफ़ी अभी कुछ चीज़ें डेफिशिएंसी होती है, उसमें फ्लॉज होते हैं. सो उसमें मार्जिन होता है मिस्टेक का स्केच के अंदर. सो इन दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू आर गोइंग टू मेक एन आर्ट वर्क. Purpose of a preliminary sketch. Formally, however, it is a useful way for an artist to capture a fleeting impression of a scene
or person before it changes. Flitting means fleeting, जैसे हम कहते हैं fleeting shadows, fleeting lights, something which moves or which changes very quickly within seconds with the passage of time. So ऐसे जिस तरह हमारा हम कहते हैं कि साए साए की तरह गुजर जाना, एकदम से साए चेंज हो जाते हैं जैसे लाइट की डायरेक्शन आपकी चेंज होती है, स्पेशली इन आउटडोर्स। तो उसी तरह से एक स्केच भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आर्टिस्ट के लिए, ताकि फ्लीटिंग इम्प्रेशंस जो हैं उनको कैप्चर किया जा सके, जो कि आपके जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो सकते हैं। और स्पेशली जो प्रिलिमिनरी स्केचेस हैं, दे वर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली एट दैट टाइम व्हेन देयर वाज नो इन्वेंशन ऑफ कैमरा। सो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस स्पेशली उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी, जब ओल्ड मास्टर्स जो हैं उनके पास कोई सच कैमराज और फैसिलिटीज़ नहीं थी कि आप अपने मॉडल की जो पोजेस हैं उनको कैप्चर कर लें। तो उसके लिए जो आर्टिस्ट था ऑफ दैट टाइम, उसको अपने मॉडल को पोज करवाना होता था और वो स्केचेस के थ्रू ही उसको कैप्चर करते थे। डिफरेंट पोजेस, डिफरेंट गेस्चर्स, डिफरेंट कॉम्पोजिशंस जो हैं वो अपने प्रिलिमिनरी स्केचेस में जो है उनको प्रिपेयर करते थे, एंड देन उनकी स्टडीज़ बनती थी, डिटेल स्टडीज़, और उन स्टडीज़ को जो है फिर वो कंबाइन करके अपनी पेंटिंग्स में फर्दर यूज़ करते थे। फॉर दिस पर्पज़ इट इज़ टिपिकली एक्सिक्यूटेड रैपिडली एंड विद लिटिल कंसर्न फॉर एक्यूरेट डिटेलिंग। सो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि फ्लीटिंग इम्प्रेशंस को कैप्चर करने के लिए एक प्रिलिमिनरी स्केच को बनाया जाता था। सो इसके अंदर एक क्विकनेस और एक रैपिड एक्शन था ये। दैट्स वाई जो डिटेलिंग थी, जो आप कह सकते हो कि शेडिंग है, उस चीज़ को जो है वो लेस फोकस किया जाता था, बट ज़्यादा फोकस होता था कि आप जो मेन ड्राइंग है या मेन एंगल्स आपके हैं, तो आप उनको कैप्चर कर लें जो आपकी कॉम्पोजिशन को हेल्प आउट करें। बिकॉज जब आप शेडिंग में चले जाते हो, जब आप डिटेलिंग में चले जाते हो, तो वो स्केच में वो स्केच आपका स्टडी में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपकी स्टडी बन जाती है बेसिकली, जिसमें आपने फर्दर ऑब्जर्वेशन के लिए अपनी जो है वो डीप उसकी शेडिंग की हुई है और अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको ड्राइंग किया हुआ है आपने। दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल। कुछ रफ़ेल की पेंटिंग्स हैं जिसके अंदर से ये उसके स्केचेस हैं, और इन स्केचेस को फर्दर फिर जो है पेंटिंग्स के अंदर आर्टिस्ट ने यूटिलाइज किया है इन अ बिगर कॉम्पोजिशन। सो एज यू कैन सी, लाइन्स वर वेरी क्विक। एक हमें मूवमेंट नज़र आती है, क्विक मूवमेंट लाइन्स के अंदर, और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड शेडिंग हमें नज़र नहीं आती, बिकॉज दीज आर ऑल स्केचेस, नॉट द डिटेल स्टडीज़। It was the general belief in the 17th, 18th, and 19th centuries that the giants of Venetian art, Titian, Veronese, and Tintoretto, did preparatory sketches in color for their composition. Titian, Veronese, and Tintoretto, they were very important artists or painters of that time period. And there is no evidence that Titian worked that way. However, there are some sketches for larger artworks left by Tintoretto, who, like Titian, sketched directly on a canvas. Veronese, on the other hand, was one of the first Italian artists who practiced preliminary oil sketches in preparation for larger artworks. सो डिफरेंट आर्टिस्ट के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं ऑफ पेंटिंग। इसी तरह से डिफरेंट आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने डिफरेंट स्केचिंग टेक्निक्स को भी एक्सप्लोर किया। सो जिस तरह टिंटरेटो है और स्पेशली टिशन जो है, टिशन जो है उस आर्टिस्ट ने जो है डायरेक्ट स्केचेस किए हैं अपने कैनवस के ऊपर, मींस कि उसी स्केच को फर्दर पेंटिंग में आगे कन्वर्ट किया है, उस पर लेयर बाय लेयर जो है उसको फर्दर जो है पेंटिंग को प्रोड्यूस किया है। और वेरोनीज जो आर्टिस्ट है, वेनेशियन आर्टिस्ट, ही प्रैक्टिस्ड ऑयल स्केचेस, मींस कि आप डायरेक्टली जो है वो थोड़ा पेंट के साथ और ऑयल के साथ अपना आप स्केच प्रिपेयर करते हो। आप पेंसिल को यूज़ नहीं करते हो, चारकोल को यूज़ नहीं करते हो, आप पेस्टल पेंसिल्स नहीं यूज़ करते हो। ही यूज़ टू use oil paints directly for making his sketches for the paintings.
There are some other images on the right side. Also you can see माइकल की पेंटिंग्स हैं सिस्टाइन चैपल सीलिंग के ऊपर, एंड दीज आर ऑल फ्रेस्को पेंटिंग्स जिनके ये स्केचेस हैं। माइकल ने सिस्टाइन चैपल की जो सीलिंग है उसके ऊपर हमें डिटेल्ड और डिफरेंट एपिसोड्स नज़र आते हैं, डिफरेंट सीन्स नज़र आते हैं जिसमें हमें गॉड और डिफरेंट एंजल्स और डिफरेंट इवेंट्स नज़र आते हैं बाइबल से भी लिए हुए। तो उसके अंदर हमें ये एक स्केच नज़र आता है माइकल का। Characteristics of preliminary sketches. Preliminary sketching is perhaps when an artist is most free because you cannot make a mistake. It is not about drawing an accurate likeness, but rather about capturing the essence of a person or object. To do this, you need to be loose, bold, and not afraid to make mistakes. It essentially allows the inner of an artist to come out. So, जो प्रिलिमिनरी स्केच है इसके अंदर आपको जैसे मैंने कहा यू कांट मेक अ मिस्टेक एंड इट्स नॉट ड्राइंग एन एक्यूरेट लाइकनेस बिकॉज आपकी ये डिटेल स्टडी नहीं है, इट्स अ स्केच। सो यू आर बेसिकली कैप्चरिंग द सेंस। आप जो हैं, जो आपका सिटर है, जो आपका मॉडल है, आप उसके फीचर्स को जो है कैप्चर करते हैं, आप उसका करेक्टर, आप उसकी पर्सनालिटी को जो है वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं अपने स्केच के अंदर। जैसे आप कैरिकेचर की एग्जांपल ले लें, अगर कैरिकेचर होता है किसी भी पर्सनालिटी का, किसी भी पर्सन का, तो उसके अंदर क्या किया जाता है कि जो आपके फेस के ऊपर मेन आपके जो प्रोजेक्टिंग फीचर्स हैं, जो आप सपोज अगर आपका किसी का नोज़ ज़्यादा प्रोजेक्टिंग है या बहुत पॉइंटेड है, या किसी की लिप्स बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड हैं या बहुत छोटे लिप्स हैं, मीन्स कि आपका जो करेक्टर है ना, जो आपके फेशियल एनाटमी है, उसको जो है वो कैरिकेचर में ज़्यादा इन्हांस कर दिया जाता है, जिससे आप फ़ौरन आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कैरिकेचर किस पर्सन का है, क्योंकि आप उसके वो जो स्पेसिफिक करेक्टर उसका बिल्ट हो रहा होता है, उन फीचर्स को आप बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं, जिससे ईजी हो जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए, बाकी आप डिटेल्स ना भी बनाएं। सो स्केच के अंदर भी सेम यही प्रोसीजर है। फॉर दिस रीज़न sketches are conceptually unique and highly individual. They portray the inner identity of the artist and are more difficult sometimes to copy as a result than a finished work. This is the only known preparatory drawing done for a portrait by Titian. In this drawing, the artist depicted a full-length standing figure with an arch in the background. So ये टिशन ने एक sketch draw किया हुआ है before doing a painting, and this is the painting which he has done. ये भी कुछ जो हैं लेनार्डो की पेंटिंग्स के sketches हैं, as you can see in the right side, the sketch of Last Supper, very famous painting by the artist. So that's it. Thank you.